concentration, we will just show about what is the concentration. So concentration is what actually? Concentration is the amount of solute. Concentration is the amount of solute that dissolve or present in a solution, either in the form of a volume that may be present in a smaller quantities or smaller amount than that of the solvent, that is the larger amount. So what we can say, the concentration of the solution is what actually? The amount of solute that is present in a solution that can termed as concentration. Suppose if there is a solution of sodium chloride, suppose if there is a sodium chloride present in case of water, if there is a water and if it is a sodium chloride salt, sodium chloride solution, salt solution, so in which there is a water in the form of a solvent and the salt present in them in the form of solute. This is what actually? That is salt, or it is also called solute, solvent in the form of water. So what will be the depending on concentration? Concentration mostly dependent on the amount of salt present in them, or amount of salt dissolved in it, that is considered as concentration. So what will be the concentration? If the sodium chloride present in them, it is present in suppose 10 gram and into the 150 gram of water. So the percentage or concentration percentage written in the form of mass by mass percent. Got it? Got it? The first point फिर से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग सुन लीजिए एक बार। जब भी हम लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है? दो चीजें, एक सॉल्वेंट है, दूसरा सल्यूट है। तो जो सल्यूट प्रेजेंट होता है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? सल्यूट ही कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब सल्यूट बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सल्यूट घटेगा तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सल्यूट डिपेंड करता है। अगर हम लोग सॉल्वेंट ज़्यादा डाल दें, वाटर ज़्यादा डाल दें, तब भी सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाएगा, या ऑलरेडी वाटर का जो अमाउंट है या सॉल्वेंट का जो अमाउंट है उसमें हम लोग सॉल्यूट कम डालें तब भी उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कुल मिला करके अगर इसके जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो है वही कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो को घटाता है या बढ़ाता है। तो हम क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन केस ऑफ एनी सॉल्यूशन that depends on the concentration of a solution, or it is also called as the concentration of a solution. The amount of solute present in any solution, that is termed as कहाँ पे? अरे तुम लोग जब स्कूल में मच्छर काट रहे हैं जी पैर में, हाँ ओके, यहाँ पे देखिए ये 150 ग्राम है। जब दोनों मास बाई मास में जब हम लिखेंगे, मास बाई मास परसेंटेज लिखेंगे, तो उसमें क्या आएगा? ग्राम में, वाटर भी ग्राम में रहेगा और जो सॉल्यूट है यानी सॉल्वेंट भी ग्राम में रहेगा और सॉल्यूट भी ग्राम में रहेगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे?
the amount of solute that dissolve are present in a solution that refers about the concentration of any solution. Got it? And the next case, if there is a alcohol and acetone, if it is the alcohol present in the form of a solvent, solvent के फॉर्म में क्या है, अल्कोहल है, और सल्यूट के फॉर्म में क्या है, एसीटोन है। तो अल्कोहल जो होगा, अल्कोहल जो है वो भी ml में होगा और एसीटोन भी ml में होगा। हाँ, क्या पूछ रहे हो? एसीटोन जो होता है वो क्या है, जैसे वो भी एक केमिकल कंपोजिशन, तो दोनों ही ml में है, तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज एसीटोन, it is present in the solvent that is in alcohol. So whatever the amount of acetone present in it, that is called as its concentration. Why? Because the amount of acetone depends about its concentration. जितना ज़्यादा हम लोग सल्यूट का नंबर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। क्लियर है? देखिए, the amount of solute, if it is present in the form of a gram, amount of a solute present in the form of a gram and amount of a solvent present in the form of a gram too. So the both are present in the form of a mass, and that would be considered as mass by mass percentage. And there is, if the amount of a solute which is present in the form of a volume, that is in the form of a ml, and solvent it is in the form of also in the volume, that is ml, so that will be the considered as volume by volume percentage of concentration. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि दोनों का ही केस वॉल्यूम के, यानी कि सॉल्यूट के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ही होगा। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। अब सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 ml पहले एसीटोन लिए थे, 150 ml वो अल्कोहल में, अगर इसको 50 ml कर दें तो 150 ml ये तो एज यूजुअल रहेगा और ये 50 ml हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक सिंपल सा आंसर दीजिए, एक सिंपल सा आंसर दीजिए। सपोज करिए कि आपके वहाँ शरबत बनाया जा रहा है, और जब शरबत बनाया जाता है तो उसमें चीनी का जब अमाउंट हम लोग बढ़ाते हैं, यानी शुगर का, तो वो शरबत क्या होता है, बहुत मीठा हो जाता है। फिर उसमें हम लोग उसका अमाउंट घटा देते हैं। कैसे? उसके अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है? विच इज डिजॉल्व इन केस ऑफ अ सोल्यूशन, एंड दैट कैन डिजॉल्व द सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। So with the help of a solute and solvent, there will be the solution prepared. That is considered about that the concentration. So concentration को हम लोग निकालेंगे कैसे? concentration percentage निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? दोनों तरीके का हम निकालना बता दे रहे हैं, concentration percentage in ml and concentration percentage in gram, दोनों बता देते हैं। इसके लिए एक रूल है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ये कहेंगे
मास के केस में द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इनटू 100। तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा मास बाय मास परसेंटेज में। और अगर यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दे, मास की जगह पे इसको हम क्या कर दें, वॉल्यूम कर दें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तब इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्लियर है? अब आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द कॉन्सेंट्रेशन, द मास ऑफ सोल्यूशन, नो, द क्वेश्चन इज गिवन हियर, द मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्ट, द मास ऑफ सॉल्यूट in the form of salt given as 10 grams, and the mass of solvent, अच्छा ओके, the mass of solvent, the mass of solute and the mass of solvent in the form of water, किस फॉर्म में, सॉल्वेंट के फॉर्म में, वाटर है, इट इज 90 ग्राम। so the equation given here, the formula is क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, और नीचे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ वेरी गुड, इन दोनों को सॉल्यूशन होगा, वेरी गुड, 10 ग्राम और 90 ग्राम दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा 100 ग्राम इंटू 100 करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 मास बाय मास परसेंट। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लगाइए, हम दे रहे हैं, आप लोग आंसर बताएं। चलो जी लगाओ इसको। कितना, कितना, हाँ ये हो जाएगा 10/250 इंटू 100, तो मास बाय मास,
आ रहा है समझ में? चलो एक दूसरा और लगाओ। रुक जाओ। दिख रहा है? Mass of solute acetone is equal to 35 ml and the mass of solvent alcohol is 150 ml. 15 115 115. Calculate the mass percentage in volume. The question is given here. A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of solution. How many? A solution contains 50 ml of alcohol. 50 ml alcohol, and it is dissolved in 150 ml of water. तो इसमें सल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर सल्यूट होगा। जिसका अमाउंट कम होता है वो सल्यूट होता है कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सल्यूट होता है? इसको कहते हैं 50 ml सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है 150 ml। अब इसको ऐड करेंगे कैसे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूशन का निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ जी, और ऐड करने के बाद ये बचता है कितना? 50/200 कितना? 85। हाँ, बाई वॉल्यूम है इसका कॉन्सेंट्रेशन।